Let me confirm that my audio video is clear. Am I audible to all of you? Okay, done. That's good. Now I'm sharing my entire screen. Please let me confirm that my screen is visible to all of you. My screen is visible to all of you. Yes or no? Please let me confirm that my screen is visible to all of you. Okay, that's good. That's good. Okay, done, 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 done. So now we are going to start today's session with the Constitution of India. Hope so you all are getting your material by today. Yes or no? आपको आपका मटेरियल मिल चुका है माय डियर फ्रेंड्स? मुझे बताएगा यहाँ पर कोई आपको आपका मटेरियल मिल चुका है? एम आई ऑडिबल? अच्छा, यहाँ पर डेस्कटॉप से कोई कनेक्टेड है तो मुझे बताइएगा डेस्कटॉप पे ऑडियो ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सन्नी जी शायद मेरे हिसाब से कनेक्टेड थे. एम आई ऑडिबल ऑन डेस्कटॉप ऑल्सो? Who is connected through desktop? Who is connected? Yes, me on desktop. So, अंकित जी प्लीज चैट बॉक्स में एक बार लिख लीजिए. बेनुधर जी को बोलिए कि अपना ऑडियो ज्वाइन करें. Audible on desktop also. Please write down that. Please write down that audible on desktop also in the chat box. अंकित जी लिख दीजिए या तो संतोष जी लिख दीजिए. Anyone. Please write down in the chat box that they are audible on desktop. Audible on desktop. Okay, done, 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 done. Audible on desktop. Okay, done, done, done. Now audible. Okay, done, 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 done. चलिए अभी मैं थोड़ा चैट पे ध्यान नहीं दूंगा. आज मेरा एक डिवाइस काम नहीं कर रहा है तो मैं बारी बारी से चैट देख लूंगा. ठीक है, चलिए. तो हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस को मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया था. सिलेबस को मैं एक बार फिर से आपके सामने रख रहा हूँ. मुझे जो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं पेपर नंबर 2 टॉपिक नंबर 11. इन टॉपिक नंबर 11 the syllabus for the constitution of India is limited with following articles just like article number 14, 21, 22, 32, 20, 226, 227 and 311. सिर्फ और सिर्फ आपको ये 7 आर्टिकल्स ही पढ़ने हैं और इसके सिवा आपको क्या पढ़ना है तो प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और point number 11, you just have to learn only the preamble of India, only article number 14, 21, 22, 32, 226, 227 and 311. Okay. So now हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है. ठीक है, चलिए. तो कुछ लोग मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है. आप सभी को मुझे एक बार बताइए वीडियो मिल चुका था आज? हैव यू गॉट द वीडियो? How to connect with the application? How to connect with the website, which is very much clear, in which I have given the proper guidance. Please, please, I request all of you that I don't want to reiterate myself because of so many students are here and I want that my time will not be wasted again on such silly topics. ओके, चलिए. तो मैंने जैसे अभी बताया सबसे पहले आप सभी को सिलेबस रेडीली अवेलेबल होना चाहिए. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सिलेबस नाउ? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव syllabus now? I request again all of you that if still you do not have, please, please, please make it available with you uh, in each and every lecture. So we are going to start our point number 11 for paper number 2. Point number 11 is related to
Constitution of India. And in Constitution of India, we have to learn about the preamble, article number 14, आर्टिकल नंबर ऑन देन विच आर्टिकल, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर, देखे बिना बताएंगे, यहाँ पर देखे बिना बताएंगे कौन है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर, देखिए अभी कमेंट्स आने बंद हो गए, यस 21, यस देन, यस देन 22, देन 26, then 32, sorry 26 का 32, 226, 227 and 311. These are the difference between you and me. मैंने आप सभी को यही बताया कि आपको आर्टिकल नंबर भी याद रखने हैं, ठीक है। तो हमें पता रहना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल थे। यस संतोष जी, परफेक्टली okay. I again reiterate myself, and you also reiterate yourself with me that we have to learn preamble for the Constitution, Article number 14, Article number 21, Article number 22, Article number 26, sorry, 32, Article number 226, 227, and 311. So now we are going to start our today's session. First of all, this image represent the original preamble. ये प्रॉपरली वही कॉपी है जो प्रियम्बल की है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रॉपर कॉपी है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। First of all, we are reading this article, and after that, we are explaining. We are learning each and every word of the preamble, because in the examination, examiner can ask the particular meaning of the word. एग्जामिनर आप सभी को एक एक वर्ड के मीनिंग्स पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरिन, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर। आप सॉवरिन से क्या समझते हैं, आप सेक्युलर से क्या समझते हैं, आप सोशलिस्ट से क्या समझते हैं। तो आपको एग्जाम में ये सभी वर्ड एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट रीड द प्रियम्बल एंड यू ऑल्सो रीड विथ मी, ओके माय डियर फ्रेंड्स। ओके नाउ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के लोग हैं, हैविंग द सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ सॉवरिन, socialist, secular, democratic, and republic. My dear friends, please focus on these five words. I again reiterate these words: sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. And to secure all its citizens for security, justice, liberty, equity, and fraternity. For security, which for security is justice. We are providing justice to our citizen of India. How many types of justice we are providing? Three types, which सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हम सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजकीय दृष्टि से हम सभी को न्याय देते हैं, ठीक है। जस्टिस का मतलब रहता है लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब रहता है स्वतंत्रता ऑफ थॉट, थॉट का मतलब आपके सोचने का तरीका, आपको उसमें यहाँ पर लिबर्टी दी जा रही। एक्सप्रेशन, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। बिलीव, आपकी जो भी सोच है, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो भी मान्यता है, फेथ, फेथ किसी भी चीज को लेके, मतलब आपके रिलीजन के लेके, आपके किसी भी ट्रस्ट को लेके, आपके किसी भी थॉट से लेके, किसी भी और वर्शिप, इन लिबर्टी दी गई है। इन सभी की लिबर्टी आप सभी को दी गई है, बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। देन इक्वेलिटी of the status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual। इन सभी को अभी समझना नहीं है, मैं पूरा समझाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ये सभी वर्ड्स को मैं पूरा एक एक करके, अलग अलग करके समझाने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स।
अभी जस्ट रीड द प्रियम्बल, फिर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। आई विल सेपरेट ईच एंड एवरी वन इन डिफरेंट पार्ट्स, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी वन एंड थिंक ऑफ ईच एंड एवरी सीक्वेंस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फ्रेटर्निटी, बंधुता, बंधुत्व जिसे बोलते हैं, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक की डिग्निटी यहाँ पर रहनी चाहिए, उसकी हर एक की डिग्निटी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेशन in our constitution assembly this 26th December November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। 26 नवंबर 1995 सॉरी 1949 को हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। दैट्स व्हाई इट हैज बीन सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल डे। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? नाउ वी आर गोइंग टू start to learn about the symbol। वॉइस इज नॉट क्लियर नीरज जी, ट्रांसक्रिप्शन भी आ रहा है वॉइस के साथ, वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, नेहा जी told me that voice is breaking, now my voice is clear, sound echo not possible। Yes, humming is because of my laptop। यस डेफिनेटली थोड़ा हमिंग, हाँ हमिंग आ रहा होगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप है ना वो सुबह से चल रहा है, मैं उसमें सुबह से काम कर रहा था, तो अभी वो हीट पकड़ रहा है। जस्ट मिनट, मैं मेरा एसी स्टार्ट कर लूं ताकि वो हीट ना पकड़े। हाँ सही बोल रहे हैं आप। अभी एक हमिंग आ रहा है उसमें। चलिए, अभी मुझे बता सकते हैं माई वॉइस इज क्लियर? चलिए नो, अभी यहाँ पर किसी एक को मैं बोल देता हूँ ट्रांसक्रिप्ट, वो तो आपको अपनी तरफ से करना रहेगा प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो डिसेबल आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, मैंने अलेबल किया ही नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन तो आप अपनी तरफ से क्लोज करना चाहिए आपको, वो तो मैंने यहाँ से मैं तो कर ही नहीं सकता, वो आपका खुद का है। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं अभी। अभी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार ये स्क्रीन पे नहीं आ सकता। अभी मेरे पास एक मोबाइल है, वो भी नहीं काम कर रहा है अभी फिलहाल तो। चलिए, the preamble to constitution of India, we have to first aware about the purpose, what is the purpose behind the preamble। देखिए, प्रियम्बल ये चीज ऐसी है कि जैसे हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं, तो उस बुक में क्या लिखा हुआ है उसका प्रीसाइज जो होता है वो उसके प्रियम्बल में होता है। जैसे कि हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक में बेसिकली क्या लिखा हुआ है, उस बुक से पहले एक छोटा सा पेज होता है जिसमें ऑथर ने उसके बारे में लिखा होता है, अबाउट द बुक्स। दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर एनी ऑफ द बुक। जस्ट अ मिनट माय फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई मुझे बोल रहा है ब्रेकिंग हो रहा है, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ओके नाउ चलिए। ओके, तो प्रियम्बल किसे कहते हैं कि किसी भी बुक को लेके अगर हम कुछ भी जानना चाहते हैं, या तो किसी भी लेटर्स को लेके, या तो किसी भी वर्ड को लेके हमें एम्बिग्युइटी, यानी कि हमें असमंजस है, यानी कि उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके प्रियम्बल को देखना चाहिए। तो जस्ट लाइक दैट द क्रिएटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा है, उन लोगों ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, उसके बाद में प्रियम्बल रेडी किया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना था, उसके बाद में प्रियम्बल बना था। इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द क्रिएटर्स गिव्स द सॉरी पुट द जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन कि जहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है ना, वहां पर आपको प्रियम्बल को समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बार देखते हैं उसका पर्पस क्या है। प्लीज, आपका जो कंसंट्रेशन है वो, अगर आपने प्रिंट ली हुई है तो प्रिंट पे भी होना चाहिए और स्क्रीन पे भी होना चाहिए। और उसके साथ मैं जो बोल रहा हूँ उसको कनेक्ट करेंगे हम, और हम ट्राई करेंगे कि इसी लेक्चर में आपको प्रियम्बल के बारे में पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, इसी लेक्चर के टाइम पे। तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द प्रियम्बल? Purpose behind the preamble is it indicates the source from which the constitution derives its authority। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहां से ड्राइव कर रहा है। द प्रियम्बल indicates about the authorization of the constitution of India, from which source he gets the authority। वो कहां से अपने अथॉरिटी ले रहे हैं, ये सभी चीज कहां से मिलती है हमें? प्रियम्बल से मिलती है। सेकंड पर्पस, it also states the objects which the constitution seeks to establish and promote। ये जो है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बता रहा है। जैसे हमने अभी 5 ऑब्जेक्ट देखे थे, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर कौन से 5 ऑब्जेक्ट्स देखे थे? मैं यहाँ पर मुझे बता पाएगा? कौन से 5 ऑब्जेक्ट्स हमने देखे थे माय डियर फ्रेंड्स? यस, preamble you can say introduction also। Which 5 objects derive in the preamble? Which 5 objects? Yes, justice. Then objects. I want objects. Justice, uh, liberty, equality, and fraternity। These are the objects have been provided by the preamble। देखिए, मैं फिर से एक बार आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ पर फिर से हम बिल्कुल आराम से जाएंगे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है वो एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, मतलब हमारे समाज में, हमारे देश में ये ऐसा कहना चाह रहा है कि हमें जस्टिस को एस्टैब्लिश करना है, हमें सभी को लिबर्टी देना है, हमें सभी के बीच में इक्वेलिटी रखना है, और हमें सभी के बीच में फ्रेटर्निटी रखना है। तो दीज आर द 4 ऑब्जेक्ट्स that that has been established by the preamble of India, preamble of Constitution of India। Okay? तो इट ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू एस्टेब्लिश। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि सभी के बीच में जस्टिस, सभी को हम जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, यही चीज तो उसमें लिखी हुई है। कौन से जस्टिस? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजकीय। वी हैव टू गिव द लिबर्टी टू ईच एंड एवरी पीपल ऑफ इंडिया। विच टाइप ऑफ लिबर्टी? थॉट यानी कि विचार की, एक्सप्रेशन यानी कि आपके हाव भाव की, बिलीफ यानी कि मान्यता, फेथ यानी कि आस्था, वर्शिप यानी कि आपका प्रभु के साथ तो बंधन, मतलब एक ऐसा एक कनेक्शन जो होता है,
उस आपकी जो श्रद्धा होती है उस श्रद्धा को वहां पर एस्टेब्लिश करने मतलब लिबर्टी देने की बात कर रहे हैं। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, सभी को सेम दर्जा दिया जाता है, सभी को सेम अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी कि दी जाती है सभी को टू प्रमोट एमोन और आप सभी को इक्वलिटी है कि आप अपना खुद का धर्म या तो अपने खुद के विचार या तो अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर सके। देन थर्ड फोर्थ वन इज फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। हम ऐसे बिहेव करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि एक सिटीजन दूसरे सिटीजन की डिग्निटी को कहीं पर भी चोट ना पहुंचाए, ऐसे हम एस्टेब्लिश करेंगे। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, चाहे वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन हर एक की जो डिग्निटी है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होनी जरूरी है। और इसी के साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब एकता एंड अखंडता, एकता का मतलब है एक साथ जुड़ के रहेंगे, अखंडता मतलब इसे को कभी भी इंटीग्रिटी, हमारी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अखंडता हम देश के यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये उसका पर्पस है बेसिकली। तो ये तो यहाँ पर नीचे मैंने महात्मा गांधी का एक अच्छा, मेरा वॉइस हो रहा है, ये सभी को वॉइस, अच्छा अच्छा, नॉट क्लियर, वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकेबल, ब्रेकेबल। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, लिसन मी केयरफुली, लिसन मी केयरफुली, अगेन लिसन मी केयरफुली, जस्ट अ मिनट, listen me carefully that I will share the Google Meet link just now. You all are requested to just join the link. Just a minute. Wait, wait, wait. चलिए, मैंने यहाँ पर गूगल मीट में क्लियर कर लिया है। आप गूगल मीट को ज्वाइन कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तुरंत ही इसको छोड़ दीजिए। मैं गूगल मीट का लिंक आपको भेज रहा हूँ। काइंडली लीव।
यहाँ पर वैभव जी ने रेज हैंड किया है। एनी क्वेरी मैम? चलिए। तो चलिए, am I audible to all of you now? Now is it okay with all of you? Okay, done. Now we are not do not waste our time. We just start our today's session again. चलिए। तो हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, तो हम कहीं पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस आप लोगों को तुरंत ही शिफ्ट हो जाना है। ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन हम ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, ठीक है। ओके। नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके। तो हम यहाँ पर थे। अभी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे पास अभी आईपैड है। आईपैड में मैं उसमें नहीं देख पा रहा था, अभी मैं देख पाऊंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं मैसेज डायरेक्टली अभी देखूंगा। ठीक है। तो देर आर टू पर्पस बिहाइंड द प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर महात्मा गांधी जी का एक कोट मैंने बताया हुआ है कि what what we thought about the preamble. Preamble seeks to establish what Mahatma Gandhi described as the India of my dream, an India in which the poorest shall feel that it is their country. मतलब जो गरीब से गरीब बंदा है वो भी फील करना चाहिए ये मेरा देश है। जैसे अभी आप सभी को सभी के हार्ट में, सभी के दिल में एक देश की भावना देखते हैं, एक देश दाज देखते हैं कि कुछ भी हो जाए ये मेरा कंट्री है। तो ये एस्टेब्लिश करने के पीछे किसका हाथ है? और ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशन है, कौन क्रिएट कर रहा है? द प्रिएबल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। वो कहीं पर भी अपना वॉइस, मतलब कहीं पर भी जैसे भी इनजस्टिस होता है हम तुरंत ही बोलते हैं आई विल शी इन द कोर्ट। बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस और नो? कुछ भी इनजस्टिस होता है तुरंत ही हम बोल लेते हैं कि नहीं, आई विल शी इन द कोर्ट। हम कभी भी इनजस्टिस को कुछ भी करके उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड बाय द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, preamble and constitution of India. देखिए, an India in which all communities shall live a perfect harmony। मुझे हर एक चीज की स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन as within the limit। एक लिमिट है उसकी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी हार्मनी इंजॉय कर सकता हूँ। ये जो चीज है वो प्रियम्बल कहना चाहता है। देयर कैन बी नो रूम इन सच एन आइडिया फॉर कास्ट ऑफ इन अनसोशियबिलिटी। असामाजिक जो भी तत्व होते हैं उससे मुझे दूर रहना है, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। हमारे देश में असामाजिक काफी सारे बिहेवियर ऐसे होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे चाहते थे कि ऐसा कोई भी बिहेवियर ना। और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिक ड्रिंक्स, जैसे आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी को इंटॉक्सिक ड्रिंक से बहुत 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 नफरत थी। तो ये सभी चीज जो है वो भी इसमें वो डालना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि हारमोनी, हारमोनी का मतलब रहता है स्वतंत्रता। पंकज जी, यहाँ पर हारमोनी, हारमोनी का मतलब इनडायरेक्टली हम देखने जाए तो उसको हम संवादिता भी बोल सकते हैं। आपकी परफेक्ट हारमोनी, जिसे हम एग्जैक्टली हिंदी वर्ड बोले तो संवादिता, ठीक है। हर एक का जैसे कि कोई पुअर रिलीजन है या तो कोई बिछड़ी हुई जाति है,
उसका भी एक मतलब रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बिछड़ी हुई जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका आवाज उठाने के लिए कुछ नहीं है। उसका भी वॉइस इफेक्टिवनेस है। दैट इज संवादिता, क्रिएटेड बाय आवर मीडिया बोल सकते हैं, क्रिएटेड बाय आवर जुडिशल सिस्टम बोल सकते हैं, क्रिएटेड बाय आवर लीगल सिस्टम बोल सकते हैं। काफी सारी ऐसी हमारे साथ सिस्टम है कि उनके लिए ये हार्मनी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये सभी चीज महात्मा गांधी जी की थॉट थी, उनकी फिलोसॉफी थी, उनका बिलीफ सिस्टम था कि जिस चीज को हम प्रियम्बल ऑफ इंडिया में रिफ्लेक्ट करने में कामयाब हुए। देखिए ये सभी चीज मैं आप सभी को इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आए और आपको आपके पास टाइम है और उसको एलोबरेट करने की जरूरत है, तो ये सभी चीज आप उसमें लिख सकते हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? आज जो आंसर की रिलीज हुई है, उसको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा और ज्यादा कंटेंट देना है। वी हैव टू गिव मैक्सिमम कंटेंट ऑन द सब्जेक्ट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। अगर किसी ने आंसर की नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज प्लीज गो थ्रू विद दी आंसर की। आई हैव ऑलरेडी सेंट इन द टेलीग्राम ग्रुप। राइट नाउ टिल द संडे आई विल सेंड ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इन बोथ द प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, but from the next Monday I just send each and every instruction in the telegram group only. I again reiterate myself that please, I request all of you, I beg of you, please read the messages very seriously and put all your efforts to read the messages. We are giving instruction, but आप लोग पढ़ते ही नहीं। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि वो जो चीज मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाल दी है, आप उसी के लिए बार बार मुझे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसके साथ काफी सारे लोग यहाँ पर सफर हो रहे हैं। ठीक है। यस कह सकते हैं, हार्मनी मीन्स लिविंग टुगेदर पीसफुली। ये लिविंग टुगेदर पीसफुली कब हो सकता है? ठीक है, संवादिता कब हो सकती है ये चीज? जब किस छोटे से छोटी भी जाति का वॉइस हम तक पहुंचे, मतलब जो सत्ता है, जो सरकार है, सरकार तक पहुंच सके, तभी हम एक साथ रह सकते हैं। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, पर्पस के साथ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रियम्बल? हमने अभी बताया कि हमारा जो प्रियम्बल है वो हमने कब एक्सेप्ट किया था? 26 नवंबर 1949। दैट्स व्हाई 26 नवंबर सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन डे। व्हाट इज प्रियम्बल? This question may be asked in your examination. What is preamble? What do you understand by the preamble? A preamble is an introductory statement, which I already described, which is an introductory statement in a document that explain the document's philosophy and objectives. अगर इसको किसी को और तरीके से लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर राइटिंग अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, अ प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट which explain the philosophy and objective of the constitution of India। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को पता चलना चाहिए इसमें कि जो प्रियम्बल जिसे हम आमुख बोलते हैं, आमुख जो है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारतीय बंधारण है उसका इंट्रोडक्शन है। बेसिकली क्या है उसका? इंट्रोडक्शन है। और इसकी फिलोसॉफी क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो ये सभी समझाता है। इन कॉन्स्टिट्यूशन इट रिप्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स। देखिए पहली चीज यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या कहना है। इसका इंटेंट, जस्ट अ मिनट, इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स। ये देखिएगा, सबसे पहला उसका इंटेंशन क्या था? इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स। यहाँ पर इट रिप्रेजेंट्स इट्स इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर, जिन्होंने बनाया हुआ है, जिन लोगों ने, जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी हमारे, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ये ड्राफ्टिंग कमिटी,
कमिटी ने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है उसके पीछे क्या इंटेंशन था, दैट रिप्रेजेंट बाय द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। उसका जो इंटेंशन था, जो हमारे भारतीय बंधारण के गड़बड़िया जिसे बोल सकते हैं हम, उनका क्या इंटेंशन था ये प्रियम्बल में, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, टोटल कितना टाइम लगा वो तो इसमें नहीं बताया, लेकिन अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो पता चल जाता है, ठीक है, कि इसके पीछे कौन सी हिस्ट्री रही, कहाँ से ये सोर्सेस को हमने लिया हुआ, कहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया हुआ, ये सभी चीज इसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है। एंड द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेशन, कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेशन जो आप बता रहे थे, अभी मैंने पूछा था तब आप लोगों ने बताया था, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म, ठीक है, रिपब्लिक, दैट आर द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ आवर नेशन। देखिए, और चीज क्या होता है, इसके सिवा प्रियम्बल हमें क्या देता है, द प्रियम्बल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ फॉलोइंग थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट, सबसे पहले चीज इसको ध्यान में रखेगा, अगर ऊपर वाला सेकंड स्टेटमेंट अगर आपको याद नहीं रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कहां से लिया है, सेकेंड वन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हमारा जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर कैसा है, मतलब सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, रिपब्लिक है, इक्वलिटी रखने वाला स्टेट है, कैसा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, हमने देखा था, मैंने अभी अभी जस्ट बताया था। अच्छा, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर, प्लीज स्टेट मी इन द कमेंट बॉक्स दैट which four objects reflects by the preamble, which four objectives, चलिए कोई मुझे बताएगा यहाँ पर, सबसे पहला जस्टिस था, यस, जस्टिस के बाद क्या था, लिबर्टी, यस, लिबर्टी के बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी के बाद फ्रेटर्निटी, यस, दैट्स गुड, दीज आर द फोर ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट्स बाय रिप्रेजेंट बाय द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। ओके, नाउ फोर्थ वन इज डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन, कौन सी डेट पे हमने प्रियम्बल को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया। अगर ऊपर वाला कुछ भी नहीं समझ में, अब मैं आपको राइटिंग स्किल बताता हूँ कैसे इसको लिखा जाता है, देखिए इसको कैसे मेमोराइज किया जाए। जैसे कि मैं प्रियम्बल फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है कि प्रियम्बल क्या है। एक प्रियम्बल बेसिकली अब हम डिस्कस करते हैं कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, किसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अगर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है तो वो क्या बताएगा, हम उसकी फिलोसॉफी बताएगा, उसका ऑब्जेक्टिव बताएगा, तो इस चीज को हम एक सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, कैसे, तो a preamble is an introductory statement of Constitution of India which reflects the philosophy and its objective। तो हो गया सिंपल सा एक, कैसे लिखना है समझ में आ गया। जैसे ही आ गया, फिर इसके बाद अकुला जी, मैं इंग्लिश के सिवा कुछ भूल ही नहीं रहा हूँ, आई जस्ट एक्सप्लेन इन इंग्लिश ओनली, है ना, तो प्लीज 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 आप देखिएगा इस चीज को, हाउ टू राइट, व्हाट इज आइडिया अबाउट द प्रियम्बल। एंड आफ्टर दैट, अगर आप इफ यू वांट टू skip the second sentence then you can, but you cannot skip the third one that is, these are the ideas, so which are the ideas given by the preamble, the first one is source of a constitution, second one is nature of Indian state, third one is statement of its objective, and fourth one is date of adoption। ओके, चलिए, तो ये सारे जो थे वो शीर्षेस थे। चलिए, अभी मुझे कौन बताएगा विच आर द फोर सोर्सेस ऑफ ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडिया, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले सचिन जी, सचिन जी प्लीज लेट मी गिव द फर्स्ट आइडियाज गिवन बाय द प्रियम्बल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, सचिन जी, आई वांट पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सचिन जी, कैन यू हियर मी, Hello, यस सचिन जी hello. बताइए, Yes, sir, बताइए, yes, sir, I can hear. विच Sir, first is
First is the source of constitution. Okay, that's done, done, done. Now second one, Second I is will ask with another one. I will ask with another one. विवेक जी, यहाँ पर विवेक जी है। विवेक जी बताइए मुझे दूसरा आइडिया कौन सा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रियम्बल यहाँ पर मुझे कौन सा दूसरा आइडिया दे पाता है? विवेक जी, कैन यू हियर मी? हाँ, yes, sir. हाँ, प्लीज Sir, प्लीज। second one is nature of Indian state. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, विच टाइप ऑफ नेचर? जस्ट लाइक दैट, Mm, socialist, secular, republic. secular. These are the natures. We Yes, know sir. that we are the republic country. We know that we are social country. We know that we are secularism. We have the secularism. Just like that. These are the natures of the country. Okay. Now I will go with the Kalpana ji. Ma'am, please unmute your mic and give the third idea. Kalpana ji. The third Yes. is statement of the objectives. Which are the objectives? Kalpana ji, which objectives? Forget. There are four objectives. There are four objectives. Four First is objectives. justice. First is justice. Justice. Second one, give the idea about the second one. अंकित जी मुझे बताइए कौन सा second objective था? Liberty. Yes, liberty. Third one given by the किशोर जी. किशोर जी बताइए मुझे. थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? थर्ड ऑब्जेक्टिव किशोर जी क्या था? देखिए मैं कभी भी क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ, मैं बहुत ही स्लोली जाऊंगा, लेकिन मुझे ये चाहिए कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन द क्लास, नॉट सिटिंग लाइक द आइडल। यस, इक्वलिटी। फोर्थ वन गिवन बाय द हेमंत जी। हेमंत जी बताइए मुझे। Fraternity, sir. फ्रेटर्निटी, दैट्स गुड, दैट्स गुड, आई लाइक योर एनर्जी। And fourth source, we are talking about the fourth source. Now, fourth source given by the Sarita ji. Sarita ji, which one the fourth source? Am I audible, Sarita ji? Yes, you have unmute your mic, class. चलिए, तो हम जाते हैं सोनल जी तक। सोनल, यस, बेनुदर जी ने यहाँ पर बता दिया डेट ऑफ एडॉप्शन दैट इज 26 नवंबर 1949। चलिए ठीक है, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड आई अप्रिशिएट योर एनर्जी। प्लस बस ऐसी इसी तरह एनर्जी बनाइए रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लियर दैट व्हाट इज प्रिएम्बल। ठीक है, होप सो सभी को क्लियर होगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? ओके Yes, sir. सरिता जी, डोंट वरी, डोंट वरी। मुझे लगा कि आपने माइक अनम्यूट किया है, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आया, तो डोंट वरी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो समझ में आ रहा है आप सभी को? इज इट अंडरस्टेबल फॉर यू ऑल ऑफ यू? तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्लियर दैट व्हाट इज प्रिएम्बल and the purpose behind the preamble. These are the two questions can be asked from the preamble of India. Many more are there, but these are the first two questions behind the preamble of India. There are more than 80 peoples in the there, but only six people comment me in the field box that we have clear. Jaswinder ji, please listen carefully that what is preamble? Preamble is an introductory statement. It is introductory statement for what? Constitution of India. और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है तो वो क्या कहना चाह रहा है, तो उसकी फिलोसॉफी बताएंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स बताएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। कौन से ऑब्जेक्टिव्स और कौन से आइडिया? तो देयर आर फोर आइडियाज। फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड वन इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, थर्ड वन is statement of its objectives, and fourth one date of its adoption. Four ideas and four objectives. Yes, definitely संतोष जी, यहाँ पर आप ये चीज भी ध्यान में रख सकते हैं। Four ideas and four objectives. और hope so this one is clear for clear to all of you. Okay, चलिए, हिस्ट्री ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा हिस्ट्री की तरफ देख लेते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे,
क्योंकि अगर शायद कुछ लिखना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं. इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू राइट डाउन द क्वेश्चन अबाउट द preamble. Ideas behind the preamble to Indian Constitution were laid down by the Jawaharlal Nehru's objective resolution. देखिए, सबसे पहला और सबसे ज्यादा अगर किसी का पार्ट है तो 1928 में the resolution given by Jawaharlal Nehru, and the same idea or the same philosophy adopted by the Constitution Assembly. वो ही जो रिजोल्यूशन था उसकी ही फिलोसॉफी और उसके ही ऑब्जेक्ट को लेके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 22 जनवरी 1947 को ये आइडिया और या तो उसका आइडियल्स या तो उसका मेन ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है, ऑल्दो नॉट ऑन एनफोर्सेबल इन कोर्ट. देखिए, इस पे ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल को हम एनफोर्स नहीं कर सकते, मतलब ये कोर्ट में दावा नहीं कर सकते इसके बेसिस पे. ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है. फिर भी द प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, देखिए अभी भी हमने वही चीज देखी थी और वही चीज यहाँ पर बताई, एंड एक्ट एज एन एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल व्हेन द लैंग्वेज फाउंड एम्बिग्युअस. समझिएगा इस चीज को, फिर से एक बार बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड. समझिएगा कि जहां पर कोई भी आर्टिकल है, उस आर्टिकल की लैंग्वेज आप लोगों को समझ में नहीं आती है, तो उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करने के लिए प्रियम्बल को बनाया गया. आई अगेन reiterate that when you cannot understand the language of any article, preamble will help you to interpret such article. And this work can be done by Supreme Court of India. जहां पर भी इंटरप्रिटेशन की बात आती है, जहां पर एम्बिग्युइटी की बात आती है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ सवाल खड़ा होता है, तो उसका फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एंड दैट कैन बी डन थ्रू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी और थोड़ा सा उसका क्रक्स था. हाँ, मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ. जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 हम आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात आती है. तो इक्वलिटी की जब बात आती है तो कोई ऐसा कह रहा है कि नॉट एनफोर्सेबल इन, व्हाट डू यू मीन बाय सर नॉट एप्लीकेबल? हाँ, मतलब दावा नहीं कर सकते. यहाँ पर एसआरआई मतलब क्या है पता नहीं. हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है. यस यस यस, रिकॉर्डिंग है. नेहा जी को थोड़ा देख लेते. देखिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है यहाँ पर, डोंट वरी, है ना. इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको. एनफोर्सेबल इन कोर्ट. देखिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है ना, तो उसके बेसिस पे हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल के बेसिस पे हम नहीं जा सकते. जस्ट लाइक दैट डीपीएसपी. डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज जस्ट एन एडवाइजरी. ये आपको सलाह सूचन देने के लिए होता है, लेकिन इसके बेसिस पे आप दावा नहीं ठोक सकते कि नहीं, मुझे लिबर्टी तो इतनी मिलनी चाहिए, रेदर देन दैट लिबर्टी डिफाइंड इन आवर फंडामेंटल राइट्स. लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रियम्बल में लिखा है इसलिए मुझे मिलना चाहिए. तो दैट इज द मीनिंग बिटवीन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट. अंडरस्टैंड ना. जहां पर भी ऐसा होता है, जहां पर भी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स पे किसी ने दावा कर दिया, कि लिबर्टी में दावा कर दिया, तो ये लिबर्टी की जो डेफिनेशन है वो हाँ वह कहाँ पर क्लियर होती है? वो प्रियम्बल में क्लियर होती है. द लैंग्वेज और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लिबर्टी इज क्लियरली मेंशन्ड इन द प्रियम्बल. तो ये चीज है वहां पर. ठीक है, तो ये दोनों चीज यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं. तो आपको जब ऐसा पूछा जाए व्हाट इज प्रियम्बल, तो उसमें भी आप ये जो सेंटेंस है वो लिख सकते हैं. पूरा आपने प्रियम्बल समझा दिया, उसका सोर्सेज समझा दिया, फिर उसके नीचे आप लिख सकते हैं
थोड़ा एडवांस में, कि although it represents the objectives, although it gives the idea, but it is not enforceable in court। ऐसा लिख सकते ताकि सामने वाले को पता चले कि नहीं, इस बंदे को हर एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। कहते यहाँ पर आपको आईपी नहीं देना है, यहाँ पर आपको डबल ए और डिस्क्रिप्टिव देना है। तो जितना नॉलेज है ना, सामने वाले को रिप्रेजेंट कीजिए। यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ विथ योर सेंटेंस, विथ योर वर्ड्स। आपके माइंड में क्या है, वो सामने वाले को तभी पता चलेगा जब आप उसको पेन पेपर पे उतारोगे। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, एग्रीड? तो समझिए इस Yes, चीज sir. को, है ना, इस चीज को समझिए और फिर आगे बढ़िए, और थोड़ा थोड़ा माइंड में सोचते जाइएगा कि कैसे लिख सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे और कौन सा यहाँ पर कैसे इन्वॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दी, हिंदी में लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? लेकिन मेरे हिसाब से ये आपको प्रिय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी में लिख सकते हैं संतोष जी, क्यों नहीं लिख सकते? लेकिन आपको पहले ही मेंशन करना पड़ेगा कि मैं पूरा पेपर जो है वो हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कौन सा वर्ड्स था? पहला कौन सा वर्ड्स था? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है, इट इंडिकेट्स अल्टीमेट सॉवरेनिटी, सार्वभौमत्ता। सार्वभौमत्ता क्या है वो हम नीचे देख रहे हैं अभी, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। Sovereignty of the people of India. Sovereignty means the independent authority of the state। आप सभी को पता है कि बेसिकली हमारी गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है? सिटीजन ऑफ इंडिया। We the people of India। So basic final authority, who is the final authority? We are the final authority, but we are giving our authority to the some parliament people, some cabinet ministers, by using our voting right। ये सुनो, तो वी आर द फाइनल अथॉरिटी। ये चीज यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हम जो है इंडिया को चला रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से कुछ लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, विच आर द मिनिस्टर, विच आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हु आर सॉरी नॉट विच आर, हु आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हु आर कैबिनेट मिनिस्टर्स, they are our representative, but we are the final authorities। So sovereignty means the independent authority, the independent authority of the state, not being subject to the control of any other state or external power। हमारे पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल, बट वी हैव द पावर ऑफ इलेक्टिंग अवर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक मीनिंग बिटवीन द वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड वन, देखिए यहाँ पर आपको ये पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरीन। तो ये इस चीज को समझते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, अभी मैं किसी को भी कुछ भी पूछ सकता हूँ और आपके वर्ड्स में आपको मुझे समझाना रहेगा, चाहे हिंदी में समझाइए चाहे इंग्लिश में समझाइए, लेकिन इसके बाद आई विल डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चन टू एनीवन। तो लिसन मी केयरफुली अबाउट दैट। व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरीन? The term means that India has its own independent authority। We are not depending on anyone। We have our own independence। We are no one is ruling on us। कोई हमारे पे रूल नहीं कर रहा है, हमारे पास खुद की अथॉरिटी है। एंड इट इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। कोई मतलब जैसे कि कोई पूरा एक यूनियन हो और यूनियन के ऊपर एक सत्ताधारी पर्सन बैठा हो, ऐसा नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे खुद का है, हमारे ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको, कि जब हम हमारे पर स्लेवरी मतलब हम गुलाम थे जब, तो हमारे ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट की क्राउन रूल, जो हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो रूल्स आते थे, जो ऑर्डर्स आते थे, उसको फॉलो करने के लिए हम कंपलसरी बंधी थे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने बोल दिया कि कल से टैक्स डबल, तो कल से टैक्स डबल। उन्होंने बोल दिया कि कल से आपको खेती नहीं करनी है तो नहीं करनी। लेकिन अभी हमें ऐसा कोई नहीं बोल सकता।
हमें कुछ भी करने के लिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसीजन लेंगे, लेकिन वो कौन होंगे? पीपल ऑफ इंडिया। कोई बाहर का एक्सटर्नल पावर नहीं होगा। इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉस विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। देखिए, हमने सॉवरेनिटी लूज की है। कहां पर लूज की है? ध्यान रखिएगा, लूज कहां पर की है? लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर क्या है? हमारे धारासभा, हमारे विधानसभा, हमारी लोकसभा, हमारे राज्यसभा, ये सभी चीज हमारे लेजिस्लेचर के पार्ट है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोकसभा में बैठे हुए हैं, जिनके पास पावर है किसी भी लॉ को फॉर्म करने का, यानी कि बनाने का। ठीक है, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं है। वो चाहे तो हमारी लिबर्टी ले नहीं सकते, वो चाहे हमारे फंडामेंटल राइट के साथ खेल नहीं सकते, वो किसी भी रूल का ऐसे ही वायोलेशन नहीं कर सकते। They have to make the rules within certain limitation. So these there's a basic meaning of sovereignty. मैं एक सिंपल और इजी मीनिंग में कहना चाह रहा हूँ ना, तो जैसे अगर मुझे मुझे किसी ने ऑर्डर दिया और मुझे वो करना रहेगा, तो मैं मेरी सॉवरेनिटी लूज कर रहा हूँ। ये देश के बारे में मैं कह रहा हूँ। तो हमें किसी देश का सुनने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द सॉवरेनिटी, वी हैव आवर ओन सॉवरेनिटी। तो यहाँ पर बोलिए, कौन मुझे समझाएगा और कौन यहाँ पर मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरिन? चलिए, मैं किसी से पूछता हूँ यहाँ पर, किससे पूछे, किससे पूछे? प्लीज अनम्यूट योर माइक। यहाँ पर पूछेंगे। चलिए, हमारे यूपी के टॉपर्स हैं, बताइए हरि सिंह जी। क्या बात है, जैसे ही मैंने नाम लिया वो उन्होंने मैदान छोड़ दिया। चलिए ठीक है, समीर जी से पूछते हैं। समीर जी बताइए। हेलो। जी बताइए, बताइए समीर जी। हेलो। जी जी जी, सुनाई दे रहा है समीर जी। सर सोवरेनिटी इसका मतलब सर भारत जो है मतलब अ, आंतरिक और बाहरी दृष्टि से मतलब अपनी सुरक्षा वगैरह के लिए अपना मतलब किसी किसी फॉरेन वॉरेन के मतलब विदेशी सत्ता के मतलब अधीन नहीं है। ये जो है वो आपका बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पर वो बोलते हैं ना, इस बार आप चेकिंग में देखेंगे ना, तो उन लोगों ने ऐसा किया है कि आपको ये है ना, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपके आंसर में आना चाहिए। तो ये पहली चीज है, वी आर इंडिपेंडेंट। हमारे पास किसी भी एक्सटर्नल पावर का, किसी भी सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, दीज आर द मेन पॉइंट। तो आपके आंसर में ये चीज तो होनी ही चाहिए। वी हैव आवर ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। इतना लिखेंगे ना, इसके बाद आपको जो लिखना है लिखिए। मैंने जो बोला वो सभी चीज आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना चीज आना चाहिए। ठीक है, चलिए। यहाँ पर जी मैं किसी और को भी अभी पूछूंगा। अतुल जी बताएंगे यहाँ पर। अतुल जी बताइए। समीर जी अपना माइक अनम्यूट कर, म्यूट कर लीजिए। अतुल जी बताएंगे मुझे यहाँ पर। Sir, हम्म। sovereignty means we are the independent. Independent in which matter? Uh, independent means uh, हम किसी के भी अधीन नहीं है। Yes, हम अपने we are not depending on taking our decision. We are not ठीक है। taking, we are not depending on making rules. We are not making Yes, to rectify our laws. तो हम yes, किसी भी चीज पे इंडिपेंडेंट नहीं है। वी आर नॉट मेकिंग, वी आर नॉट डिपेंडिंग टू रेक्टिफाई अवर टैक्सेशन। ये सभी चीज आप इसमें लिख सकते हैं। हाँ, तो yes, हमारा फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट नहीं कर सकते। कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि उसके लिए हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इन शॉर्ट, नहीं वी है। हैव आवर ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ठीक है, प्लीज म्यूट योर माइक अतुल जी। नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट, सामाजिक। द टर्म मीन्स अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू द डेमोक्रेटिक मीन्स। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? प्रजासत्ताक, लोकतंत्र। इन दोनों चीजों में लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। अब मैं आज क्लियर करूंगा डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, लोकतंत्र
एंड प्रजासत्ताक। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इट होल्ड्स फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। यहाँ पर हमारे पास जो सोशलिस्ट का जो मतलब है ना, वो इकोनॉमिक सोशलिस्ट है। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक सोशलिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं, वहां पर जैसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे हम बोलते थे पीपीपी, जहां पर पब्लिक सेक्टर भी अच्छे से काम कर पाएगा और प्राइवेट सेक्टर भी अच्छे से काम कर रहा है विथ कोऑपरेशन। तो हम सोशलिस्ट समाजवादी हैं। समाजवादी इस चीज से नहीं है कि हम समाज यानी कि किसी भी रिलीजन या तो किसी भी कास्ट को रिप्रेजेंट मतलब प्रायोरिटी देंगे, या तो किसी को हम लेकिंग फील करवाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सोशलिस्ट इकोनॉमिकल सोशलिस्ट है। मतलब हम आर्थिक तरीके से सबको साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। एंड ध्यान रखिएगा, इट वॉज एडेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। ये हमने कब ऐड किया था? 42nd अमेंडमेंट में हमने इसको ऐड किया था। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने कब ऐड किया था? 42nd। ये पहले नहीं था। जब हमने 26 नवंबर 1949 को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, या तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने एक्सेप्ट किया, तब ये सोशलिस्ट नहीं था। देर आर थ्री वर्ड्स विच हैव बीन एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। मैं ये चीज आपको लास्ट में पूछूंगा, विच आर दीज थ्री वर्ड्स, अभी नहीं पूछने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि देर आर थ्री वर्ड्स which have been added in the preamble by 42nd Amendment. The first one is socialist. Now we are going with the second. Okay. Second is secular. सेक्युलर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? सेक्युलर का मतलब होता है यहाँ पर कि हमें किसी रिलीजन जो है वो हमारा नेशन रिलीजन नहीं है। हमें किसी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी है। हमने किसी रिलीजन को हमारा नेशन रिलीजन नहीं बनाया हुआ है, या तो सेंट्रल रिलीजन नहीं बनाया। हर एक रिलीजन को हम सेम रिस्पेक्ट देते हैं। हर एक रिलीजन को हम सेम प्रोटेक्ट सेम सपोर्ट देते हैं। हम यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट मनी को सिर्फ और सिर्फ इसी रिलीजन को डेवलप करने के लिए लगा सकते हैं। सभी को सेम सपोर्ट, सभी को सेम रिस्पेक्ट, सभी को सेम प्रोटेक्शन। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर। ठीक है, द टर्म मीन्स दैट all the religions in India get equal respect, protection and support from the state. ठीक है, तो ये चीज सेक्युलर का मीनिंग होता है कि आप हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नेशन का रिलीजन बनाया हुआ है। ठीक है, हमारे लिए सभी के सभी सेम है, जिसे हम बोलते हैं बिन सांप्रदायिक। क्या बोलते हैं हम? बिन सांप्रदायिकता बोलते हैं इस चीज को हम, जिसे दूसरी चीज में धर्म निरपेक्ष कहा जा सकता है। धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रिलीजियन, ऐसा भी बोल सकते हैं। It was incorporated, again मैंने बताया था, there are three words which have been added in the preamble by 42nd Amendment Act. तो फर्स्ट वन इज सोशलिस्ट, सेकंड वन इज सेक्युलर, थर्ड वन अभी बाकी है आपके पास। ठीक है, चलिए, तो मुझे कोई बताएगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी, जैसे कि जीएसटी है, हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में से जो जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, उस जीएसटी को पर्टिकुलर रिलीजन के लिए एक्सपेंड करें। Can we make an arrangement like that? We are collecting GST from Department of Post and utilize such GST for a particular region? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? By which object? By which object we cannot do the secularism? Because we are secular people. We have the secular nation. Okay, as per the rule number 23 of GFR also. Yes, but GFR बना कैसे सचिन जी? ये बेसिक आइडिया है। आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, उसका बेसिक आइडिया कौन से है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
वहीं से लेके आए, ठीक है। चलिए, मैंने अभी बताया था डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, दीज आर द सिमिलर वर्ड्स बट बोथ आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है समझते हैं, देखिएगा। Democratic. The term implies that the Constitution of India has an established form of constitution, which gets its authority from the will of people expressed in the election. Yes. देखिए, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नेंस होता है, या तो जो भी शासन होता है, वो शासन बेसिकली किसके हाथ में होता है? लोगों के हाथ में होता है। और लोग ये शासन मतलब किसी पे गवर्न करना या तो किसी पे रूल करना कैसे कर सकते हैं? थ्रू द इलेक्शन। दे हैव वोटिंग पावर्स। लोकतांत्रिक किसे बोलते हैं? कि जहां पर फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? पीपल ऑफ इंडिया के पास, देश के नागरिक के पास, सिटीजन ऑफ इंडिया के पास। तो ये चीज होती है, उसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं। रिपब्लिक किसे बोलते हैं? प्रजासत्ताक। लोकतांत्रिक एंड प्रजासत्ताक। द टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको कौन इलेक्ट करता है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको कौन इलेक्ट करता है? हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनको कौन इलेक्ट करता है? हु इलेक्ट आवर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? विद द पीपल ऑफ इंडिया। दैट इज द रिपब्लिक। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड एज हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, और इन सबको इलेक्शन करने की मतलब इलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। दीज आर द 5 बेसिक वर्ड, या तो दीज आर द 5 बेसिक थिंकिंग बिटवीन द प्रियम्बल। हमने सबसे पहले ये देखा था, ये देखिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। दीज आर द बेसिक आइडियाज, दीज आर द बेसिक थिंकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर कोई कंसेप्ट समझ में ना आया हो ऐसा कुछ? यस और नो? हेलो, गुड मॉर्निंग, आर यू विथ मी? सो तो नहीं गए हैं? अच्छा, अभिषेक जी कह रहे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब ये हो रहा है कि हमारे जो फाइनल, हाँ, डेफिनेटली 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 फाइनल अथॉरिटी, वी आर टेकिंग अवर फाइनल अथॉरिटी। यस, एक्सप्लेन द डिफरेंस। यस 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 यस, डेफिनेटली मुझे पता ही था। देखिए, शायद मैंने यहाँ पर डिफरेंस दिया भी है पीछे, मुझे नहीं दिया, नहीं दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही बता देता हूँ। देखिए, डिफरेंस बेसिक क्या है इन दोनों में, कि एक में हम हमारे हेड ऑफ द को फिर से एक्सप्लेन कर दिया। डेफिनेटली ये दोनों को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। एक सिंपल से समझिए कि एक गांव है या तो एक देश है, वो देश को कौन चला रहा है? तो देश को जो चला रहा है वो इनडायरेक्टली वो जो है वो लोग है। मतलब फाइनल अथॉरिटी कौन है? फाइनल अथॉरिटी लोग है। इसीलिए लोगों के द्वारा चलता हुआ शासन, जिसे हम बोलते हैं लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, उसके सिटीजन से चलने वाला एक तंत्र जिसे हम बोलते हैं लोकतांत्रिक। रिपब्लिक प्रजासत्ताक। प्रजा का सत्ता, प्रजा अपनी सत्ता किसको दे रही है? हेड ऑफ द स्टेट को। और हेड ऑफ द स्टेट किसको इलेक्ट करता है? मतलब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय विच? तो किस सत्ता, सत्ता दे रही है प्रजासत्ताक। इन दोनों वर्ड को समझिएगा। डेमोक्रेटिक का मतलब रहता है लोकतांत्रिक, मतलब लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। इसे हम करते हैं यस, बाय द पीपल फॉर द पीपल, डेफिनेटली डेमोक्रेटिक। एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब रहता है प्रजासत्ताक, मतलब प्रजा अपनी अथॉरिटी से इलेक्ट करते हैं। वहां पर प्रजा रूल करती है, यहाँ पर प्रजा इलेक्ट करती है। These are the basic difference between the democratic and republic। समझ में आया? अभी भी किसी को कोई दिक्कत है या तो कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर से बता सकता हूँ इस चीज को।
एनीबडी? तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप सब लोग सोच लीजिए। आप भी पानी पी लीजिए, जस्ट मिनट, मैं वापस आया। मैं तुरंत ही आता हूँ, तब तक के लिए पानी वानी जिसको भी पीना है पी लीजिए। चलिए, democratic means that the constitution gets the authority from the people of India. Democratic matlab, democratic means such like a governance in which the final authority in the hand of, or final authority with the people, and people can transfer their authority by their will through the election. That is the meaning of democratic. And another, the republic means the head of the state, उनके खुद के किंग बोल सकते हैं, द किंग इलेक्टेड बाय द पीपल। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस। गणतंत्र जिसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। So may I have a question, sir? यस प्लीज। Hello. यस यस यस। सर अपन इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इट्स अ सिस्टम फॉर इलेक्शन एंड एज अ रिपब्लिक डायरेक्टली पीपल इलेक्टेड अ पर्सन। आपकी मुझे आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। So it means democratic means people have a system established नहीं, system सिस्टम according नहीं, to which they सिस्टम हम can. नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसी एक परिकल्पना है, ऐसी एक विजुअलाइजेशन है कि जिसकी सर्वोच्च शक्ति जनता के पास, हाईएस्ट पावर, सुप्रीम पावर विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक इसे बोला जाता है कि जिसमें एक ऐसी चीज, हाँ, हाईएस्ट सुप्रीम पावर विथ द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड वन, जो रिपब्लिक है, गणतंत्र जिसे हम बोलते हैं, गणतंत्र बेसिकली क्या होता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें हम राजाशाही बोलते हैं, राजाशाही, सरमुख्तियारशाही भी जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे कि अभी दुबई में है, ठीक है। जैसे कि अभी हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में है। हमारे पास रिपब्लिक है, मतलब रिपब्लिक का मतलब होता है, या रिपब्लिक मतलब रिप्रेजेंटेटिव, और डेमोक्रेटिक मतलब पीपल। कि हम, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो मतलब हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर नॉट फ्रॉम बाय द जनरेशन बाय जनरेशन। वो जनरेशन बाय जनरेशन नहीं आते हैं, वो इलेक्टेड किया जाता है, तो ये रिपब्लिक है। और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि फाइनल अथॉरिटी, सर्वोच्च सत्ता पीपल के पास है। सर, इंडिया इज डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक और बोथ, और एंड हाउ इंडिया इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक एंड इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक। देखिए, फिर से मैं एक ये चीज बता देता हूँ। देखिए, एक कंपैरिजन करते हैं हम। हमें ज्यादा पीएचडी तो नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ, आप लोगों को समझ नहीं है। हम ब्रिटेन और हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए।
ब्रिटेन और हमारा एग्जांपल लेते हैं ना, तो हमारे पास जो प्रेसिडेंट है वो कौन इलेक्ट करता है? हम इलेक्ट करते हैं। रेदर देन हमारी तरफ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन इस चीज को अगर ब्रिटेन में देखने जाए, तो ब्रिटेन की जो विक्टोरिया है वो जनरेशन बाय जनरेशन होते हैं, इनको कोई इलेक्ट नहीं करता है। तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन राजाशाही एंड गणतंत्र, तो रिपब्लिक एंड किंगडम। और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक किसे बोलते हैं? तो वहां पर जो भी पार्लियामेंट के या तो ब्रिटिश पार्लियामेंट लिखिए या हमारा जो पार्लियामेंट, इन दोनों के बीच में फाइनल अथॉरिटी का गैप रहता है। ये जो डेमोक्रेटिक मतलब हमारे पास फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? पीपल के पास है। मतलब पीपल चाहे तो सत्ता पे ला भी सकते हैं और सत्ता से निकाल भी सकते हैं। तो ये जो है वो डेमोक्रेटिक पावर है। और रिपब्लिक पावर कौन है? हमारे इलेक्शन का पावर है, किसको चुनने के? हमारे हेड ऑफ द स्टेट को, यानी कि प्रेसिडेंट को। दिस आर द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नाउ क्लियर? दैट्स रिपब्लिक। यस यस, वी फ्री फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट्स रिपब्लिक, डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमने अभी देखा था कि प्रियम्बल जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर करती है, या तो उनको भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से इससे आगे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है और आपके लिए फर्स्ट टॉपिक है। थोड़ा डिटेल में जाऊंगा मैं तो काफी लोगों को ऐसा होगा कि नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन इतना समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, आज फर्स्ट लेक्चर है। आपको ज्यादा मैं बर्डन मतलब इतना ज्यादा बोर नहीं करूंगा। ठीक है। लेकिन इसको एक बार समझिएगा, हम आगे जाएंगे और प्रियम्बल को अच्छी तरह से देखेंगे। मैं चाहता तो ये पूरा टॉपिक एक लेक्चर में खत्म कर सकता था, लेकिन आज थोड़ा डिस्टरबेंस भी हुआ लेक्चर में और काफी लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया। धीरे धीरे कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग मिस करें इस चीज को, टॉपिक को मिस करें। आई डोंट वांट दैट एनी ऑफ द स्टूडेंट मिस सच टॉपिक्स, एंड आई डोंट वांट दैट दिस विल बी बोरिंग फॉर द स्टूडेंट। सो with the help of or with your permission, shall we end this session on this topic? And we are going start with again with this topic. ठीक है। तो ज्यादातर यस, वेरी हैप्पी अबाउट एक्सप्लेनेशन। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज बी देयर। होप सो। और मेरी एक सिंपल सी चीज है, मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ। मुझे आज थोड़ा बुरा लगा, इसके लिए मुझे थोड़ा बोलना भी पड़ा आप लोगों को। एक बार जो है ना, आप आराम से हर एक चीज को पढ़िए। हम जो क्वेश्चंस, हाँ, एक चीज है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप किसने ज्वाइन नहीं किया हुआ है? हु डिडंट ज्वाइन और टेलीग्राम ग्रुप? दो ग्रुप है, एक ग्रुप मैंने आपके डिस्कशन के लिए बनाया हुआ है, दूसरा ग्रुप हमारी मेन चैनल है। यहाँ पर देखिए काफी सारे जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हुए। एक बार मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। फिर क्या आप लोग बोलेंगे हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला है, हमें नहीं मिला है। देखिए अभी मैंने एरर सोर्स वाइल ज्वाइन, ओके ठीक है। अभी राहुल जी, मैं इसीलिए है ना सभी को म्यूट रखता हूँ। हम्म, ठीक है राहुल जी, डोंट वरी, होता है। ठीक है। अभी से देर आर टू ग्रुप्स। आई जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द ग्रुप इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज एक बार देख लीजिएगा। मैं आप सभी को एक बार फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि दोनों का नेम क्या है। एग्जैक्टली आप सर्च करके, अभी मैंने उसको पब्लिक कर दिया है। आई जस्ट मेक बोथ द ग्रुप पब्लिक, but within half an hour it will be private.
I request all of you to please join the group. देखिए मैंने इस चीज को डाल दिया है। एक ग्रुप हमारा ये मेन चैनल है, अभी जस्ट मैंने जो डाला है वो हमारा मेन चैनल है। दूसरा जो है, आप सिर्फ सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा जो है वो एग्जैक्टली मैं वर्डिंग टू वर्डिंग डाल रहा हूँ, ताकि आप डायरेक्टली उसको अगर पेस्ट करके भी डाल देना तो भी आपको मिल जाएगा। अभी भी फिर भी कोई नहीं ज्वाइन कर पा रहा है तो मुझे अभी बताइए, ताकि मैं अभी ही ड्यूरिंग द कॉल इस चीज को सॉर्ट आउट कर पाऊँ।